audible? Can you please confirm if I am audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, thank you. So today's webinar is on academic writing and publishing, crafting your narrative. I am Dr. Aisha Fazal. I have done my BDS, then MS in Public Health, then Masters in Health Professional Education, and I did my certification from NAHI HSC. In January, I just did that too. So आज आप सबके जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि हमने रिसर्च करनी है बट कैसे करनी है, वो वाला जो क्वेश्चन है वो एड्रेस होगा. सो जो आज का आपका टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू अटेंड दिस सेशन देन यू वुड कम टू नो हाउ टू एक्चुअली डू द रिसर्च. सो आज हमारा एकेडमिक राइटिंग एंड पब्लिशिंग के ऊपर है कि आप एकेडमिकली कैसे लिख सकते हैं, कैसे अच्छा लिख के उसको पब्लिशिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं. Let's start with a little prayer. Rabbi Yasir, Wala Tuasir, my Lord, make it easy and do not make it difficult. Okay, so this is a picture depicting different emotions. Um, I would like to ask you all, what scares you most about writing? Can you give few inputs कि आप लोगों के क्या क्या fears हैं about writing? Just then I will share mine. First, I would like to know about yours. Okay, मुझे ना chat visible नहीं है. I would like to. चैट में अभी तक कोई क्वेश्चन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. एनीबडी? Acceptance of work, very nice. And it actually happens. Topic of writing, सबसे जो बड़ा होता है ना फियर स्टार्ट में रिसर्च के, यही होता है कि टॉपिक डिसाइड कैसे करें, कैसे हम टॉपिक फाइनलाइज करें. एनीवन एल्स? Acceptance take time, yes. It requires a lot of patience. आपको patience चाहिए होता है to know that your work will be accepted. Analysis and methodology, yes. It also happens कि हमारा जो analysis है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, methodology ठीक है, टेस्ट ठीक अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए, ये भी बहुत ज़्यादा important होता है. So yes, thank you so much for all the responses. मेरा भी सबसे बड़ा यही होता है कि ये पब्लिश हो जाएगा, अच्छे जर्नल में हो जाएगा, इंटरनेशनल जर्नल इसको एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज उसमें इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स पेशेंस. सो इट अच्छा, एक और रिस्पॉन्स आया, लेट्स सी. यस. सो ये जो से हमारे सारे फियर्स हैं ना, वी हैव टू ओवरकम दैट देम, और ये आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम होंगे. जैसे जैसे आप रिसर्च सीखते जाएंगे, इसका कोई भी एंड नहीं है. आप जितना सीखेंगे उतना देयर वुड बी अ मार्जिन टू लर्न मोर एंड मोर इन रिसर्च. एंड एवरी टाइम व्हेनेवर यू विल कंडक्ट अ रिसर्च यू विल लर्न मोर. ये इसकी ब्यूटी आप कह लें. Okay, we got a more responses. Let's look. How to write precisely with perfect choice of words without vague. Okay, it demands practice. Yes, with the practice you will get better. Okay, so objective of today's webinar is to demystify academic writing. हम इसको simplify करेंगे कि academic writing करते कैसे हैं. How to write an academic research. इसको हम simplify करेंगे. हम इसको from difficult way to simple words में हम इसको learn करेंगे. Teach narrative building. कि आपने उसको अपने वर्ड्स में उसको कैसे लिखना है, उसको कैसे how you have to pen down the words in your own manner, ये आज आप सीखेंगे. गाइड टूवर्ड्स पब्लिकेशन, कि आप फिर उसको पब्लिकेशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे. एंड फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज
which I will continue to tell within the session as well. Okay, so what is academic writing? Academic writing is basically a structured, objective, evidence-based writing. ये एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है. अब एकेडमिक राइटिंग में आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते हैं जो कि जिस भी जर्नल में भेजना हो वो आपका सेम ही रहेगा. आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपकी मेथोडोलॉजी होगी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन वुड बी देयर. अब जो जर्नल टू जर्नल थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा. उसमें ये होगा कि किसी जर्नल में गाइडलाइंस होंगी, मेथोडोलॉजी को दे वुड बी कॉलिंग इट मटेरियल्स एंड मेथड्स. किसी में आपसे डिटेल्स और सैंपल साइज मांगेंगे. किसी which is formed by introduction, then methods, then research, results, and then discussion. Okay, then आपका difference between academic, clinical, and creative writing. ये सब different है. Academic writing clinical से different है, clinical creative writing से different है. ठीक है, let's see what's the difference. जो academic writing है ये आपकी scientific knowledge के ऊपर based होती है और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड होती है. जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल हो गया, आपका थीसिस हो गया, सिस्टमैटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस, ये सब एकेडमिक राइटिंग में आते हैं. ठीक है, देयर इज अ स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इन एकेडमिक राइटिंग. इसमें आपका जैसा मैंने IM RAD, इसका फॉर्मूला होता है IM RAD. I stands for introduction, M is for methodology, R is for results, and then there is discussion. और इसमें रेफरेंसेस, टेबल्स, फिगर्स के ऊपर बेस्ड होता है आपका जो डेटा होता है. आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे होते हैं, आप रेफरेंसेस दे रहे होते हैं. आप खुद कुछ भी खुद से नहीं लिख सकते, हर चीज आपकी रेफरेंस बेस्ड होनी चाहिए. जबकि जो क्लिनिकल राइटिंग है दैट इज जो आप समरी बना रहे हैं अपने पेशेंट्स की, आप जो प्रिस्क्रिप्शंस लिख रहे हैं, जो रेफरल पेशेंट्स हैं, पेशेंट नोट्स, ये सब आपका क्लिनिकल राइटिंग है. ये भी स्ट्रक्चर्ड होता है बट टू अ लिमिट. It can be subjective, it can be objective, it will vary from your clinic to clinic. But जो academic writing है वो more or less ये structured भी बहुत well structured होता है और ये आप इसमें खुद कुछ भी खुद से नहीं लिख सकते. It's all reference based. जबकि जो creative writing है that is totally dependent on yourself, your feelings, your reflections, your narratives. इसमें आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या कैसी आप की इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं, वही आप जो सी हैं उनको नैरेटिव राइटिंग में अपने वर्ड्स में उनको पेन डाउन करेंगे. अच्छा, इसमें रिफ्लेक्शंस होते हैं. रिफ्लेक्शंस आर अ वेरी गुड वे एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स. ठीक है, रिफ्लेक्शंस हमारी जो मेडिकल राइटिंग होती है उसमें या मेडिकल स्टूडेंट्स या जो इंटर्न्स जो भी आप लोग, जिस तरह आप लोग हैं, या जो डॉक्टर्स जो भी, इसमें रिफ्लेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब मैं जैसे ही मेरा ये सेशन खत्म होता है आई कैन राइट अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑन इट. मैं अपनी बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन मेरी क्या फीलिंग्स थी, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन क्या एक्सपीरियंसेस थे, और क्या परसेप्शन थे और क्या एक्चुअल में हुआ, एंड आफ्टर द सेशन, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर करके आई कैन राइट अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन. सो ये फ्लेक्सिबल होता है. इट्स बेसिकली अ स्टोरी टेलिंग और आपकी डायरी एंट्री उन बेसिस पे क्रिएटिव राइटिंग होती है. So then the academic writing की importance in dentistry, हम क्या केस रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, ओरिजिनल रिसर्च कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यूज, ये सब हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज ऑन द एकेडमिक राइटिंग. ठीक है, सबसे पहले आपके पास आती है केस रिपोर्ट. केस रिपोर्ट में आप जो लिखते हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन वन पेशेंट. इफ यू हैव वन केस, वन पेशेंट, देन इट इज कॉल्ड एज केस रिपोर्ट. इफ यू हैव 2 to 3 or 2 to 6, मतलब like 2 or more patients, then it is called as case series. ओरिजिनल रिसर्च या ओरिजिनल आर्टिकल उसको कहते हैं जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पेशेंट, फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सैंपल्स, और उस पे आप रिसर्च करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल रिसर्च. ठीक है, जिस तरह इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आ जाती हैं. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं, इट्स बेसिकली द स्नैपशॉट. आप एक ही टाइम के ऊपर एक ही पॉपुलेशन के ऊपर, डिफाइंड पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं. देन देयर इज केस कंट्रोल स्टडीज, एंड देन
कोहोर्ट स्टडीज। और फिर आपके पास आ जाते हैं हायर लेवल्स ऑफ स्टडीज, जिसमें सिस्टमैटिक रिव्यूज आ जाते हैं एंड मेटा एनालिसिस। सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंडरी डाटा, जो आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, उससे आप ऑलरेडी स्टडी जो हुई है उनसे आप रिट्रीव करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। और जो लिटरेचर रिव्यूज होते हैं, लिटरेचर रिव्यूज आर ऑल्सो बेसिकली retrieved from the available data, but they are not that well structured as compared to systematic reviews. Literature reviews are a little bit now it is being called as like it's a ग्रे लिटरेचर टाइप, बहुत अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है ना लिटरेचर रिव्यू को ना केस रिपोर्ट्स आर गुड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, या आप उस अपने केस को रिपोर्ट कर रहे हैं उस सेंस में, बट जो वेटेज होती है वो ज्यादा ओरिजिनल आर्टिकल्स की ही होती है, या सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। Okay, we have discussed academic, clinical, and creative writing. Let's move forward. Okay, before you write, you have to lay down the foundation. Foundation में सबसे पहले क्या आता है? Selecting a focused, relevant topic, which is the most difficult part. अब टॉपिक सिलेक्ट करना है, किस बेसिस पे करें, कैसे करें? द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज, मैम हमने रिसर्च तो करनी है बट समझ नहीं आ रही करनी कैसे है, कहाँ से शुरू करें? करना तो चाहते हैं बट पता नहीं है करनी कैसे है, क्या करना है। सो सबसे पहली जो चीज होती है, दैट इज दैट यू हैव टू सिलेक्ट अ रेलिवेंट टॉपिक। हाउ कैन यू डू दैट? You can do that with the help of the already available data. You can do the needs assessment. आप उसमें अपने एरिया में, अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में असेसमेंट, नीड्स की असेसमेंट कर सकते हैं कि आप, आपकी क्या नीड है, आपको क्या चीज़ ऐसी लग रही है कि रिक्वायर्ड है फॉर दैट पीरियड, टाइम पीरियड, कि आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उस पे अपने पीको क्राइटेरिया की बेसिस पे अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। पीको इज PICO, P stands for population, I is intervention, C is comparison, then O is outcome। हम इसको आगे थोड़े से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। PICO criteria is the right way to define the topic for the introduction। इसकी बेसिस पे आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है कि आपने करनी कैसे है। अब जिस तरह मैं एक इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह अब लाइक रिसेंटली आफ्टर ईद, बड़ी ईद, हमारे पास एक पेशेंट फ्लो में ज्यादातर पेशेंट फ्लो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ मीट ईटिंग। जब आप जो पेशेंट्स बकरा ईद पे ज्यादा कंज्यूम करते हैं मीट, उसमें उनके ज्यादा इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे स्टार्ट कमिंग मोर टू द डेंटल क्लिनिक्स। अब वो ज्यादा आ रहे हैं, ये आपकी नीड असेसमेंट है कि अब पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपका आपको खुद ब खुद ही उस तरफ लीड हो रहा है कि आपने किस चीज पे रिसर्च करनी है। आपके पास कोई एक ऐसा कोई केस है जो आपके पास, आपको लगता है कि आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, सो लेट्स डू दैट। ठीक है, और केस रिपोर्ट्स आप लोगों के लेवल पे बहुत अच्छी कंसिडर की जाती हैं, कि अब एक स्पेसिफिक आपके पास एक पेशेंट आया है, कोई स्पेशल केस आया है जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और केस रिपोर्ट्स लिखना भी बहुत आसान है। सो यू शुड स्टार्ट विद द केस रिपोर्ट्स, या जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में जो क्वेश्चन बेस्ड स्टडीज होती हैं, दैट टू, दैट यू कैन डू वेरी इजीली, वो भी आप लोग कर सकते हैं। बट प्लीज प्लीज अवॉइड डूइंग कैप स्टडीज नाउ बिकॉज दे आर नॉट बीइंग पब्लिश्ड इजीली। कैप स्टडीज को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है बाय द जर्नल्स एज वेल। KAP, K is for knowledge, नॉलेज होता है, एंड देन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, इसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। लिटरेचर रिव्यूज को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है, बट एट योर लेवल यू कैन डू दैट टू, क्योंकि ये आप लोग स्टार्ट में करेंगे तो ही आगे आप लोगों को समझ आना शुरू होगी। बट सिलेक्ट अ गुड टॉपिक एंड नीड असेसमेंट करके सिलेक्ट करें कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक अच्छी सी बनाएं फिर उसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू टिप्स। लिटरेचर रिव्यू, आपने आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अब उसकी आपने लिटरेचर देखना है कि उसके पास, आपके पास क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है। सबसे पहले अपने सर्च इंजन्स जो होते हैं आपके, गूगल स्कॉलर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस एंड साइंस डायरेक्ट। ठीक है, गूगल स्कॉलर को थोड़ा सा ग्रे लिटरेचर कंसिडर किया जाता है। पबमेड इज कंसिडर्ड वेरी गुड सर्च इंजन।
और इस पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है. देन इज वेब ऑफ साइंस. वेब ऑफ साइंस इज ऑल्सो अ गुड सर्च इंजन इन मेडिसिन फील्ड. देन इज साइंस डायरेक्ट, इनके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू. ठीक है. बट गूगल स्कॉलर को अभी तक, मतलब इन पाकिस्तान और हमारी जो सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें, गूगल स्कॉलर इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ गुड सर्च इंजन, सो यू कैन डू दैट, यूज दैट टूल. देन लिटरेचर मैपिंग. अच्छा, आपने सर्च इंजन पे अपने सर्च कर लिया, कीवर्ड्स एंटर करके सर्च कर लिया. फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल स्कॉलर पर कर रहे हैं तो आप अपने कीवर्ड्स एंटर करेंगे. अगर पबमेड पे कर रहे हैं तो आप अपनी मैश टर्म्स एंटर करेंगे. मैश टर्म्स को विद द यूज ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स. बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं एंड नॉट. एंड और नॉट को बीच में रख के, लाइक यू कैन यूज योर कीवर्ड्स विद द यूज ऑफ बुलियन टर्म्स. ठीक है. और फिर नेक्स्ट, वेब ऑफ साइंस और साइंस डायरेक्ट पे आपको डायरेक्ट कीवर्ड्स एंटर करने होते हैं. वो करके आपने अपना अच्छे आर्टिकल्स रिट्रीव कर लिए. ठीक है. आपने अब लिटरेचर मैपिंग करना है. लिटरेचर मैपिंग कैसे होता है? लिटरेचर को आइदर यू कैन यूज स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट, कि ये स्टडी इस ईयर में हुई है, ये इनके ऑथर्स थे, ये अपने ऑब्जेक्टिव था इस स्टडी का, और ये रिजल्ट्स डिटेक्ट डिड्यूस किए आपने उसमें से. और यू कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ मैप एज वेल. लिटरेचर मैप की फॉर्म में भी बन सकता है, लिटरेचर टेबल की फॉर्म में भी बन सकता है. देयर आर मेनी मेथड्स टू फॉर्म लिटरेचर, डू द लिटरेचर मैपिंग. ठीक है. फिर राइट रिव्यू सेक्शन. आपने जो फाइंडिंग्स किए हैं रिट्रीव, उनको आप रिव्यू कर सकते हैं. ठीक है. आप उनमें से सारी रिव्यू करके अपना लिटरेचर का जो पॉइंट्स हैं वो सारे आप पेन डाउन कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप. अच्छा, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसका रिसर्च गैप आपको पता होना चाहिए कि ये रिसर्च गैप था. ये इस स्टडी, अब जैसा मैं एक स्टडी करने लगी हूँ, मुझे पता है कि ये वाली मैं अपने थीसिस की बात करती हूँ. मैंने अपने जो थीसिस किया था एमएचपी का, इट वाज ऑन बर्नआउट अमंग डेंटल स्टूडेंट्स और उसकी इंटरवेंशन. अब मुझे पता है कि बर्नआउट जिस टाइम पे मैंने किया था, कि बर्नआउट लेवल्स डिटेक्ट हुए हुए हैं स्टूडेंट्स में, बट उसके ऊपर कोई इंटरवेंशन नहीं हुई हुई. पाकिस्तान में, बाहर की कंट्रीज में इस पे इंटरवेंशन हुई हुई थी, मगर पाकिस्तान में इस पे इंटरवेंशन पे काम नहीं हुआ था. जस्ट प्रेवलेंस ऑफ बर्नआउट या फ्रीक्वेंसीज ऑफ बर्नआउट वर बीइंग कैलकुलेटेड. सो मैंने अपना रिसर्च गैप ये फाइंड किया कि पाकिस्तान में या इस्लामाबाद की सेटिंग्स में उस टाइम पे बर्नआउट अमंग डेंटल स्टूडेंट्स तो हुआ हुआ था, बट इंटरवेंशनल काम नहीं हुआ हुआ था. सो आई चोज द इंटरवेंशनल वर्क. तो फिर मैंने बर्नआउट डिटरमिन करके उसके ऊपर इंटरवेंशन की तरफ गई. आपने क्या करना है, बहुत सारी स्टडीज पढ़नी है. 5 to 10 years रिसेंट स्टडीज जो होती हैं, 5 to 10 years स्टडीज रिसेंट होती हैं, उनको पढ़ना है. आउटडेटेड या फाइंडिंग्स ढूंढनी है, क्या इनकंसिस्टेंसी है, आपने उसमें कहीं पे ऐसी ड्रॉबैक पकड़ना, उसकी मेथोडोलॉजी में कोई ऐसी वीकनेस पकड़नी है कि आप उससे वो डिफाइन कर सकें कि ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड था, आपने ये वेरिएबल अभी अनएक्सप्लोर्ड था, आपने इसको इस स्टडी में इसको फाइंड किया, और उसकी बेसिस पे आपने अपना लिटरेचर का जो फ्रेमवर्क है वो डिजाइन करना है. ये लिटरेचर गैप सर्च करना या रिसर्च गैप सर्च करना थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई स्टडी मिस कर देते हैं जबकि काम हुआ हुआ होता है. सो यू हैव टू डू इट लाइक 2 to 3 times ना, आप इसको डिटेल में सर्च करें ताकि आइडिया हो कि वाकई इस पे काम नहीं हुआ हुआ है, वाकई ये गैप है. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि समथिंग इन माई आई, इट्स लाइक इट्स न्यू, बट अगर मेरे साथ ही बैठा हुआ बंदा मुझे उसी टाइम पे उस पे एक और स्टडी निकाल के दिखा सकता है. सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि इस पे एक्चुअल में ये गैप मौजूद है. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज मैपिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस क्लियरली. आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर स्टेट करने हैं. ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट, specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. Objectives आपके aims and there's a little bit difference between aims and objective. Aims जो होता है वो broader term होती है, objective specific होते हैं, and they are smart as compared to aim. So
जब आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टुवर्ड द थीसिस और सम अदर टाइप ऑफ रिसर्च वर्क, सो उसमें एम भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट विद टू डिटरमिन, टू असेस, टू इवैल्यूएट, इन टर्म से स्टार्ट होते हैं, टू इवैल्यूएट द रिसर्च गैप, टू इवैल्यूएट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ बर्नआउट अमंग द डेंटल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका है ऑब्जेक्टिव। फॉर क्वांटिटेटिव यू यूज टू इवैल्यूएट, टू डिटरमिन, टू असेस, but for qualitative you use to explore, terms like that. ठीक है, so next is hypothesis. Hypotheses are either alternate or null hypothesis. Null hypothesis says that there is no association between the two variables that you are going to discuss. Two variables are the independent and dependent variables. एक disease होती है और एक आपका exposure and disease होती है. So there is no difference between the exposure and disease, but the alternate hypothesis says that there is a difference between the exposure and the disease. Okay, then comes the structure of a scientific manuscript. इसमें हम follow करते हैं IMRAD format. I stands for introduction, M is methods, methodology, या materials and methods, R is results, and D is discussion. So, I introduction, why did you do this research? आप ये कर क्यों रहे हैं, इसका मकसद क्या है, that is introduction. उसमें आप ये लिखेंगे, introduction में आप funnel approach करते हैं, general to specific जाते हैं। सबसे पहले funnel approach is like कि आप पहले general discuss करेंगे, आप उसकी प्रेवलेंस डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बर्नआउट की भी एग्जांपल दी है, बर्नआउट में पहले आप उसकी प्रेवलेंस जो ग्लोबली अवेलेबल है वो डिस्कस करेंगे, फिर जो उसकी रीजनल आपको लग रहा है कोई प्रेवलेंस है वो डिस्कस करेंगे। मतलब जनरल में आप ब्रॉडर टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। ठीक है, दैट वुड बी योर इंट्रोडक्शन। उसमें आप फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज मेथड्स, हाउ डिड यू डू इट। अच्छा, मेथड्स में आपने ये सब किया कैसे है, इसमें आपके तीन स्टडी डिजाइन, स्टडी ड्यूरेशन एंड स्टडी सेटिंग आ जाता है। स्टडी डिजाइन इज द डिजाइन विच यू चोज टू कंडक्ट द स्टडी। स्टडी ड्यूरेशन इज जितने टाइम में आपने किया है। स्टडी सेटिंग इज द एरिया और द प्लेस वेयर यू कंडक्टेड द स्टडी। ठीक है, स्टडी डिजाइन, स्टडी डिजाइन कैन बी क्रॉस सेक्शनल, cohort, case control, systematic review, or it can be your RCT randomized control trial or anything else, quasi experimental, anything. ठीक है, ये आपकी स्टडी डिजाइन था। देन स्टडी ड्यूरेशन इज द टाइम duration which you take to conduct the study, and then study setting. Study setting is the place where you conducted the study. अच्छा, मेथड, और उसके बाद ये तीन, इनके बाद आ जाता है आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आ जाता है। आपने किस बेसिस पे सैंपल साइज में सैंपल्स को इंक्लूड किया है, किस बेसिस पे आपने एक्सक्लूड किया है। देन कम्स सैंपल साइज, सैंपल साइज आपने कैसे कैलकुलेट किया है। देन कम्स सैम्पलिंग टेक्निक, आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक थी या नॉन प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, क्या थी, ये सारी चीजें आ जाती हैं इन द मेथड्स। देन कम्स द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में आपने फिर उसके बाद आप डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस में आप रिजल्ट्स डिड्यूस करते हैं। ठीक है, टेस्ट अप्लाई करके, इट डिपेंड्स अब आपका नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा है या नहीं है। इफ देयर इज नो नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा देन यू वुड गो टुवर्ड्स टी टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट, जो आपके ये टेस्ट हैं। अगर आपका नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा नहीं है देन यू वुड गो टुवर्ड्स द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैन विटनी यू टेस्ट हो गया, ये वाले जो से टेस्ट होते हैं। अच्छा, फिर रिजल्ट्स में आप फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स, मेन फाइंडिंग्स को लिखते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल्स, फिगर्स, और इसमें क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशन में व्हाट डज इट मीन। डिस्कशन में सबसे पहले तो आप समराइज करते हैं अपने रिजल्ट्स को और फिर उसको कंपेयर करते हैं विद द अदर स्टडीज, अदर प्रीवियस स्टडीज। इसमें आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो इट कैन बी सिमिलर टू योर फाइंडिंग्स, the results of the other studies can be similar to your findings, or they may be different from your
फाइंडिंग्स, रिलेट फाइंडिंग्स टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। इसमें फिर आप लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं, अपनी क्या लिमिटेशंस इसमें भी लिख सकते हैं। अलग से भी लिमिटेशंस, कई आर्टिकल्स में अलग से भी हेडिंग होती है लिमिटेशंस की। एंड फ्यूचर स्कोप, अच्छा ये जो फ्यूचर स्कोप है ना, दैट वुड आल्सो लीड टू योर लिटरेचर गैप। आपने क्या इसमें नहीं फाइंड किया, आप वो नीचे लिख देंगे ना कि ये आपने अपनी स्टडी में नहीं किया, एंड यू वुड रिकमेंड द अदर रिसर्चर्स टू डू दैट। तो बाकी रिसर्चर्स के लिए वो एक लिटरेचर गैप बन जाएगा। वो जब उस पर काम करेंगे तो वो आपकी स्टडी को रेफरेंस रख के आगे काम करेंगे। सो ऑलवेज मेंशन जो आपकी स्टडी में गैप, आपकी स्टडी में जो चीज मिसिंग है उसको आपने आगे मेंशन करना है, ताकि उसकी बेसिस पे फर्दर आपकी स्टडी भी साइट हो सके। ओके, आई एम रैड द कोर ऑफ साइंटिफिक राइटिंग, इस पे वी वुड बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। इंट्रोडक्शन, आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई डज इट मैटर? ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम है क्यों और क्या है इसमें, मतलब व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेट द स्टेज ऑफ योर फॉर योर रिसर्च। सबसे पहले आपने अपनी रिसर्च की एग्जिस्टिंग नॉलेज जो गैप है वो लिखना है। क्या क्या उस पर एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें क्या फाइंडिंग्स थी, क्या प्रेवलेंस है पहले से, ग्लोबली उस पर क्या काम हुआ है, रीजनली आपके एरिया में यानी पाकिस्तान में इस पे क्या काम हुआ हुआ है। ठीक है, ये सारा। एंड में आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन मेंशन कर दिया, एंड विद योर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में यही होता है, रिसर्च क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हाइपोथेसिस में थोड़ा सा ऑल्टर करके करते हैं, तो दैट बिकम्स योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज नल और ऑल्टरनेट। ठीक है, इट बेसिकली डिफाइन द एसोसिएशन। इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। इफ इट्स यूनिडायरेक्शनल तो वो एक ही तरफ लेके जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर बाई डायरेक्शनल है तो वो कह देगा कि देर इज एन एसोसिएशन। अगर तो नो एसोसिएशन इज नल हाइपोथेसिस, इफ देयर इज एन एसोसिएशन दैट इज bidirectional alternate hypothesis. If say it says it increases or decreases, then it becomes unidirectional, कि वो एक तरफ डायरेक्ट कर रहा है, either it's increasing or it's decreasing। जो आपके दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइपोथेसिस। अच्छा, अगेन ये बहुत सारी बातों की रेपिटेशन है, बट आई विल एक्सप्लेन दिस एज वेल सो दैट इट बिकम्स मोर इजियर फॉर यू, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट मीनवाइल। अच्छा, स्टार्ट ब्रॉड। जनरल प्रॉब्लम को हम ब्रॉडली स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन करना, बट नैरो डाउन, इट्स कॉल्ड एज फनलिंग इफेक्ट। ठीक है, हमने फिर गैप तक पहुंचते पहुंचते हमने अपनी बात को नैरो डाउन कर दिया। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू, ये इशू इम्पोर्टेंट क्यों था वो आपने जरूर मेंशन करना है। और रेफरेंसेस, रेफरेंसेस तो आपने करने मेंशन इंट्रोडक्शन में। इफ यू आर यूजिंग द सैम्पल साइज, हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द सैम्पल साइज, what was your reference study for finding the prevalence। ठीक है, either you are taking it prevalence as 50% or you are using some prevalence from the previous study। उस previous study का reference क्या था, डिस्कशन में हर स्टडी का रेफरेंस। अब कोई भी बात एकेडमिक राइटिंग में आप कोई भी बात खुद से नहीं लिख सकते, यू हैव टू बैक इट विद रेफरेंस। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट एकेडमिक राइटिंग इज, it can never be wrong, it will be right if you can justify that। if you can justify what you have written with a reference, then it will become right। अच्छा, इंट्रोडक्शन की जो थोड़ी सी मैंने हर स्लाइड के इसके बाद ना एक एक थोड़ा एग्जांपल ऐड किया फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि इंट्रोडक्शन को आप कैसे लिखेंगे। और एग्जांपल जो है मैंने वो डेंटिस्ट्री रिलेटेड लिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज फ्रॉम डेंटिस्ट्री। सो अच्छा, डेंटल कैरीज इज अ कॉमन oral health issue among children। ठीक है, ये बात हमें पता है। डिस्पाइट प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स, अर्ली चाइल्डहुड केरीज रिमेन प्रेवलेंट इन लो इनकम कम्युनिटीज, के प्रेवलेंस भी उसकी ज्यादा है। Therefore, this study aims to assess the effectiveness of fluoride varnish in reducing caries among school-going children। Okay, we can refine it more by adding this study. The objective of this study is to assess the effectiveness of fluoride varnish in reducing caries among school-going children। ठीक है, aim
एंड यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एम और ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा बात। एम मेरा इस टाइम पे ये है टू इम्प्रूव द ओरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, ये मेरा एम है। मीनवाइल मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ फ्लोराइड वार्निश इन रिड्यूसिंग कैरीज अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। एम ब्रॉडर एस्पेक्ट था, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो गया। सो इट कैन बी रीफ्रेज। नेक्स्ट इज मेथड्स में हाउ डिड यू डू दिस रिसर्च, कि आपने कैसे की है। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ योर स्टडी, आपने कौन सा डिजाइन यूज किया है। वॉज इट क्रॉस सेक्शनल और कोहॉर्ट और केस कंट्रोल और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कौन सा डिजाइन था आपका, ठीक है। बी डिटेल्ड, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट। अच्छा, की एलिमेंट्स हैं, स्टडी डिजाइन है, सेटिंग है। मैंने ये बातें सारी पहले भी बताई हैं। पहले स्टडी डिजाइन आ जाता है, देन स्टडी ड्यूरेशन आ जाता है, आपने कितने टाइम में किया है, देन स्टडी सेटिंग आ जाता है। स्टडी सेटिंग ये है कि आपने कौन से एरिया में किया है, कौन सी जगह, व्हाट वाज द प्लेस वेयर डिड यू कंडक्ट द स्टडी। देन पार्टिसिपेंट्स, आपके कौन सी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, कौन सी ऑडियंस है, ठीक है, वो स्पेसिफिक, किस ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, आपने किस बेसिस पे सैंपल्स को इंक्लूड किया अपनी स्टडी में, किस बेसिस पे आपने उनको एक्सक्लूड किया है, ये सब इसमें डिफाइन हो जाता है मेथोडोलॉजी में। देन सैंपल साइज, आपने सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट की है। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द सैंपल साइजेस, but the most commonly used is the Cochrane method, according to which 384 is considered as the standardized sample size as per the Cochrane formula, जिसको हम थोड़ा बहुत ऑल्टरनेट करके, कंसिडरिंग द एट्रिशन, हम थोड़ा बहुत ऑल्टरनेट करके अपनी सेटिंग्स में यूज करते हैं। एक कॉकरेन फॉर्मूला फॉर स्मॉलर पॉपुलेशन भी होता है, वो भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सैंपल साइज कैलकुलेट करने के भी देयर आर वेरियस मेथड्स। जिस तरह आप किसी पुरानी स्टडीज में से, प्रीवियस स्टडीज में से आप एक प्रेवलेंस ले लेते हैं, उसका रेफरेंस देके आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इन द सैंपल साइज कैलकुलेटर। देयर आर वेरियस सैंपल साइज कैलकुलेटर्स लाइक ओपन एपी कैलकुलेटर है, WHO कैलकुलेटर है, राउ सॉफ्ट, एंड दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैलकुलेटर्स। अच्छा, एक तो प्रेवलेंस से आप सैंपल साइज कलेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस स्टडी की, यहाँ आप प्रेवलेंस 50% लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड होता है पॉपुलेशन साइज कंसिडर करके, उससे आप सैंपल साइज डिड्यूस कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग सैंपल साइज एंड इट विल ऑल्सो वेरी ऑन डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी डिजाइन। जिस तरह अब जब आपकी स्टडी डिजाइन RCT हो जाती है, उसमें 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, दोनों ग्रुप्स में एलोकेट करने होते हैं पार्टिसिपेंट्स G पावर कैलकुलेटर से, लाइक यू कैन यूज दैट एंड यू कैन, ये वाले कैलकुलेटर्स भी आप यूज कर सकते हैं फॉर सैंपल साइज कैलकुलेशन फॉर RCT एज वेल। तो इसमें यू हैव टू सेलेक्ट द राइट फॉर्मूला, राइट कैलकुलेटर फॉर राइट डिजाइन। ओके, नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन टूल्स। डेटा कलेक्शन आप कर सकते हैं टूल्स, या इसको इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इट कैन बी डन बाय द क्वेश्चनियर्स, सिंपल क्वेश्चनियर्स। आप बाय पेपर भी क्वेश्चनियर्स कलेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन यूज गूगल फॉर्म और समथिंग लाइक दैट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशंस करके भी कर सकते हैं डेटा कलेक्शन। एथिकल अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप ये कंडक्ट कर रहे हैं, जिस भी सेटिंग में आप कर रहे हैं, उधर से भी आपने अप्रूवल लेना है। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मोस्ट कॉमनली इज डन बाय SPSS। SPSS में आप अपने स्टैट्स जो होती हैं वो सारे ऐड कर लेते हैं, आप स्टैटा भी आ गया। एंड देन जो आपकी क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक एटलस AI हो गया। सो यू विल यूज अकॉर्डिंग टू योर स्टडी डिजाइन। अच्छा, नेक्स्ट मेथड्स की जो एग्जांपल है, उसी इंट्रोडक्शन की फर्दर continuity में है। A randomized control trial was conducted among 100 children aged 6 to 9 years in a public school, ठीक है। RCT कंडक्ट की among
100 चिल्ड्रन, एज ग्रुप ये था, सेटिंग ये स्कूल ये सेटिंग थी. ग्रुप ए रिसीव्ड फ्लोराइड वार्निश फॉर 3 months एंड ग्रुप बी डिड नॉट. एक को हमने इंटरवेंशन दी है, दूसरे ग्रुप को हमने नहीं दी है. केरी स्टेटस वाज असेस्ड यूजिंग डीएमएफटी इंडेक्स और डेटा वाज एनालाइज्ड बाय यूजिंग एसपीएसएस सॉफ्टवेयर. ठीक है, इसमें आपने स्टडी सेटिंग, स्टडी डिजाइन, पॉपुलेशन, सैंपल साइज, इंक्लूजन क्राइटेरिया सब एक्सप्लेन हो गया है. हालांकि बहुत कंसाइज मेथड्स जस्ट फॉर द एग्जांपल ऐड की है, बट इसको आप थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं. इट इट नीड्स टू बी रिफाइन, जो हो सकता है. ओके, देन रिजल्ट्स. व्हाट डिड यू फाइंड? अब आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, आपने क्या डिड्यूस किया है इससे? प्रेजेंट द फाइंडिंग्स ऑफ योर स्टडी. फाइंडिंग्स आपने डिफाइन कर दी, फैक्ट्स की बेसिस पे करनी है. ठीक है, इसमें टेबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स, ये सब आपने इनकी बेसिस इनकी फॉर्म में आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपने क्या फाइंड किया है. पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आ जाता है, जिसमें आप अपनी जो एज, जेंडर, जो आपके सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं उनको आप एक्सप्लेन कर देते हैं. देन कम्स योर एनालिटिकल फाइंडिंग्स, जिसके अंदर आप ने क्या, व्हाट वर योर वेरिएबल्स एंड व्हाट वर यू ट्राइंग टू असेस, वो सारी एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं. इंक्लूड स्टैटिस्टिकल वैल्यूज लाइक मीन्स, पी वैल्यूज, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये सब चीजें आ जाती हैं. पी वैल्यू की बेसिस पे आप बताते हैं आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हुए थे, नहीं थे, was your null hypothesis accepted or you failed to accept your null hypothesis. So next is the example of results. The mean DMFT score reduced from 2.3 to 1.4 in the intervention group. यानी कि आपका p value is less than 0.05. So no significant change was observed in the control group. ठीक है, so you can say that there was a statistically significant difference between the two groups because your p value is decreased in the intervention group. Decreased lesser than 0.05. 0.05 is the standard. If it is less than 0.05, then you can say that your results are significant. Okay, moving towards discussion. What do your findings mean? आपने अपने रिजल्ट्स, शुरू में आपने अपने रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स की जो सी हैं उनको इंटरप्रेट किया, फिर आपने उनको कंपेयर किया विद द प्रीवियस स्टडीज. कंपैरिजन इन्वॉल्व्स similar findings as well as the differences. So you will compare your findings with the previous studies. इसमें आप similarities भी mention करेंगे कि these findings are in coherence with our study. या जो differences आए हैं, in contrast to the previous study, our study showed these results. इस तरह करके आपने comparison करना है. ठीक है, it will include both similarities as well as differences. Then highlight implications. कि आपकी स्टडी की implications क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या थी, कहाँ कहाँ आपकी स्टडी लिटरेचर में नया literature add कर रही है, and what were the limitations of your study. Always remember that there are limitations in each study. You cannot say my study was perfect. There would be some limitation. There might be the limitation of sampling technique, for which you had to conduct the convenience sampling. Convenience sampling is not considered that good, so that was your limitation. So there would be any form of limitation in your study. अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है डिस्कशन का? समराइज मेन फाइंडिंग्स. सबसे पहले आपने अपनी स्टडी की जो फाइंडिंग्स है उनको समराइज कर दिया, फिर कंपेयर किया विद द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, फिर एक्सप्लेन पॉसिबल रीजंस फॉर रिजल्ट्स. अच्छा, कि ये आपके रिजल्ट्स आए क्यों हैं, आपने वो भी लिखनी है कि दिस वाज द, मतलब लाइक दिस मे बी द रीजन फॉर फाइंडिंग दिस मे बी द रीजन फॉर द रिजल्ट्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके कि आपके रिजल्ट सेटिंग ऐसी थी इसलिए ये रिजल्ट्स आए हैं, थोड़ा सा
हमने अपने रिजल्ट्स को ऐसे डॉक्यूमेंट करना है डिस्कशन में कि वो आप जनरलाइज कर सकें, जनरलाइजेबिलिटी अचीव कर सके अपने रिजल्ट्स की। जनरलाइजेबिलिटी इज दैट कि अगर आप अपनी स्टडी इस्लामाबाद में कंडक्ट कर रहे हैं, सो यू कैन से दैट इट दिस इफ यू कंडक्ट दिस स्टडी इन कराची यू वुड गेट द सेम रिजल्ट्स, जनरलाइज हो गए आपके रिजल्ट्स, ठीक है। मेंशन लिमिटेशंस, आप लिमिटेशंस लिखें कि क्या क्या लिमिटेशन थी स्टडी की। सजेस्ट फ्यूचर रिसर्च, ये आपकी स्टडी में गैप था जो कि फ्यूचर यू रिकमेंड द फ्यूचर रिसर्चर्स टू एक्सप्लोर दोज एरियाज। अच्छा, डिस्कशन में एग्जांपल में आज तक रिड्यूसिंग क्वेरीज इन द वार्निश ग्रुप अलाइंस विद स्टडीज कंडक्टेड इन ब्राजील एंड इंडिया। ये आपकी स्टडीज सेम है, देन आपकी स्टडी के रिजल्ट सेम है एज द रिजल्ट्स बीइंग obtained from the studies conducted in Brazil and India. So the frequency of application may have contributed to its effectiveness. ये आपने अपना वो रीजन दे दिया है। However, the short follow-up period is a limitation. Follow-up time कम था, ये आपकी लिमिटेशन है। Future studies with longer durations are needed. जो आपकी लिमिटेशन थी उसी से ही आपने लीड इन किया अपना गैप, कि अब अगले जो रिसर्चर्स हैं वो इस गैप को लेके आगे काम कर सकते हैं, वो ड्यूरेशन इंक्रीज कर देंगे। जो अगला जो भी द नेक्स्ट रिसर्चर वर्किंग ऑन दिस टॉपिक will increase the duration of his study because he found the literature gap in your study. Okay, there were few things missing in that formula IMRAD, which are abstract, title and references. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो सा होता है ये समरी होती है सारे आपके पेपर की। इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इफ देयर आर हेडिंग्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, background objective, then methods, results and conclusion, then it's structured. If it is given, all the information is given in the form of a paragraph without any headings, then it is unstructured. So it can be structured or unstructured. इसकी मतलब वर्ड लिमिट भी लाइक अराउंड 250 वर्ड लिमिट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो वी हैव टू फॉलो दैट डिपेंडिंग ऑन द जर्नल बीइंग यूज्ड। सो सबसे पहले टाइटल शुड बी क्लियर एंड कंसाइज based on PICO criteria. P stands for population, I is intervention, C is comparison and O is outcome. ये जो PICO के चार ये हैं, इनके ये सारे आपके पॉइंट्स जो से हैं ये कवर होने चाहिए इन द टाइटल। यूज ऑफ कीवर्ड्स इफेक्टिवली, अपने कीवर्ड्स भी बीच में ऐड करने होते हैं आफ्टर योर एब्स्ट्रैक्ट, और उनको अपने दे वुड बी योर वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और उनको अपने अच्छी तरह डिस्कस करना है पूरे पेपर में। एंड देन रेफरेंसेस, प्रॉपर साइटेशन करनी है। मोस्ट कॉमनली यूज इज वैनकूवर, बट कभी कभी एपीए स्टाइल या जिस तरह हॉवर्ड हो गए दैट आर आल्सो यूज्ड, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड दीस डेज इज वैनकूवर। Okay, then writing style and language tips. Be concise, to the point बात करें, avoid jargon, passive versus active voice, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है कि जो आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस है ग्रामर मिस्टेक्स ना हो। यू कैन यूज ग्रामरली इज अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज में चेंजेस हो सकती हैं। ग्रामरली यू कैन यूज इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डू यूज दैट। कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय डेंटल इंटर्न्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अच्छा, कॉमनली बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो इनसे हो सकती हैं रिसर्चर से, यंग रिसर्चर से, इवन बाय फ्रॉम बाय एवरीवन। ठीक है, जब हम अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं फॉर ईआरबी एथिकल रिव्यू बोर्ड को, उसमें हम सारा फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। वही हम जब उसको पब्लिकेशन के लिए करते हैं तो वो वी हैव टू यूज पास्ट टेंस, बट समटाइम्स उसको चेंज करना होता है, वो हम मतलब उसमें इश्यूज होते हैं। सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ठीक है, पंक्चुएशन, ग्रामर मिस्टेक्स ना हो।
जितना अच्छा लिखा हुआ होगा आपका आर्टिकल, उतने अच्छे जर्नल में पब्लिश होगा. Submitting for publication. Okay, journal selection. Journal selection is very important. You have to make the right journal selection. अंडरस्टैंडिंग ऑथर गाइडलाइंस. अच्छा, जब भी आप जर्नल सेलेक्ट करते हैं उसमें हर जर्नल की अपनी अपनी ऑथर गाइडलाइंस होती हैं. आप उस जर्नल को सर्च करें गूगल पे डायरेक्टली, उसमें ऑथर गाइडलाइंस में जाएं, उन सबको रीड करें, उसकी बेसिस पे अपने आर्टिकल को डिजाइन करें एंड देन गो फॉर द पब्लिकेशन. पीयर रिव्यू प्रोसेस. अच्छा, इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि आप पहले से पीयर से रिव्यू करवा लें अपने किसी कलीग से हु नोज अबाउट रिसर्च. वरना जर्नल तो आगे पीयर रिव्यूज के लिए भी रिव्यू के लिए देगा. उससे पहले अगर आप करवा लेंगे पीयर रिव्यू तो यू वुड हैव लेस मिस्टेक्स. रिस्पॉन्डिंग टू रिव्यूअर कमेंट्स प्रोफेशनली. रिव्यूअर्स के जो कमेंट्स होते हैं उनको अपने बहुत प्रोफेशनल वे में रिस्पॉन्ड करना होता है. जो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं उनके जो रिव्यूअर्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड your research in such a good manner. Even if they are rejecting your paper, they write it down in such good words that you become you. आपको जो अफसोस होता है ना कि पेपर रिजेक्ट हुआ है वो आपको इतना होता नहीं है, because they choose so right words to explain that. So comments आपने जो उनको रिस्पॉन्ड करना है वो बहुत प्रोफेशनल मैनर में करना है. Ethics and pitfalls to avoid. Plagiarism नहीं होना चाहिए. Always write your own work, write it in your own words. Keep this in mind. Authorship criteria IC and JE basis पे होना चाहिए. No ghost authorships. Try to avoid ghost authorships. They are of no use, at least at your age. Try to work on it yourself. एक्नॉलेजमेंट्स वर्सेस कंट्रीब्यूटर्स. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होती है कि आप एंड में अपने आर्टिकल के एंड में या अपने थीसिस में एक्नॉलेज कर देते हैं कि ये थे, इन्होंने मेरे हेल्प आउट. जितना नाउ आई रिमेंबर आई हैव अ वेरी गुड टर्म्स विद माय वन ऑफ माय कोलीग who contributed, who helped me in reviewing my thesis, so I added her name in the acknowledgement. कंट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करते हैं. आप जब पेपर पब्लिश करेंगे तो उसमें कंट्रीब्यूट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको भी आई वुड ऐड देम एज वेल. रेड फ्लैग्स इज डेटा मैनिपुलेशन, डुप्लीकेट सबमिशन. ठीक है, डेटा मैनिपुलेट ना करें और डेटा ओरिजिनलिटी शुड बी केप्ट इन माइंड. सबमिशन एक टाइम पे एक जगह ही करें. अगर वहां से रिजेक्ट होके आता है देन सबमिट इट समवेयर एल्स. Never submit it at two places at a time. Okay, final tips, resources, use of writing aids. You can use Grammarly, Hemingway. Grammarly is a very good software. I would recommend you all to use it. It will correct your grammar mistakes. जो इसका free version, it's freemium basically, free plus premium. फ्री जितना अवेलेबल है वो आप अवेल करें और उससे अपनी एटलीस्ट जो मेजर ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी. प्रीमियम वर्जन में इट विल मेक इट मोर रिफाइनर, बट एटलीस्ट फ्री वर्जन में आपका जो राइट अप है इट वुड बी एबल टू बी एक्सेप्टेड. Where to find free courses and guides? Always keep searching for free courses, guidelines. आप लोग कोर्सेरा से अवेल कर सकते हैं. ये आपका ये जो प्लेटफॉर्म है प्राइड, इट्स वेरी वेरी यूजफुल. इवन आई ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी वेबिनार और एनी सेशन हैपनिंग. सो एनकरेज कोलैबोरेटिव राइटिंग इन डेंटल कॉलेजेस. आप अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करें, अपने सीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करें एंड वर्क ऑन योर रिसर्च, ऑन योर एकेडमिक राइटिंग. Invite question and answer or share a follow-up form. ठीक है, आपने हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है, उसका फॉलो अप भी करना है. ठीक है, एक इवैल्यूएशन फॉर्म होता है, उसको भी आपने देखना है. मेरे पास अगर टाइम बचा तो आई वुड शेयर इट विद यू एज वेल. एक इवैल्यूएशन फॉर्म जो हैंडआउट्स एंड डाउनलोड्स, इसमें एकेडमिक राइटिंग आ जाता है. यू हैव टू फॉलो IEMRAD. ये आप लोगों को इजीली अवेलेबल होगा. यू कैन डायरेक्टली सर्च IEMRAD क्राइटेरिया और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. देन देयर आर जर्नल्स, HEC PMD से रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स की लिस्ट होती है.
वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू फॉलो दैट लिस्ट। ठीक है, आप उस लिस्ट को देख के आप देख सकते हैं, अच्छा ये वाला जर्नल इस डेट तक पीएमडीसी से रिकग्नाइज्ड है, सो यू कैन गो फॉर दैट जर्नल, फॉर दैट पर्टिकुलर जर्नल। पीएमडीसी के उसमें एचईसी का काफी सारे जर्नल्स हैं विच आर आल्सो रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी, सो यू कैन कंसिडर दैट टू। बट since we doctors have to consider this thing in mind that we have to follow PMDC guidelines as well in future, तो अपनी keeping that in mind you have to follow PMDC as well. But अभी जिस level पे you people are working, so you can follow HEC only, it wouldn't do any harm. Just self-evaluation before submission. There is a submission form. Submission से पहले जो आपने evaluation form में, I would be sharing that with you people too. You can evaluate yourself कि आपकी क्या shortcomings हैं. At times ऐसे होता है कि you have written all the write up, but एक major point था जो missing है, जो आप लोगों को याद ही नहीं, मतलब उस तरह से बंदे को याद ही नहीं रहता. But when you will go through that evaluation form, so then you will come to know it's basically like a checklist. So you will know कि इसमें क्या missing है. Thank you, and questions are welcomed. Any question? I hope that I have followed the time.